Good morning, students. Myself Deepali Harchande. Today we are going to start with the revision lecture. Today we are going to revise the lesson number 1, that is the world since 1991. Now what we are going to see in this lecture? In this lecture we are going to deal with important questions and important concepts which will ask or which would ask in the examination point of view for the 12th board examination. So few questions I have framed here. We'll see that questions. Very first we'll see few short notes and the concepts of the lesson. Very first short note on soft power. Fine. So as we have already learnt about it, I have uploaded lesson number 1, this lecture, a full lesson in one particular lecture I have uploaded. You can go through that uploaded lecture. Almost it is 48 minutes lecture, but in the same lecture you will get the whole concepts or whole lesson in one lecture, as well as I have prepared the part of that lectures, so you can go through the parts of the lecture also. So let's start to revise the each and every minute point in the lesson number 1. Okay, very first I have written here short note on soft power. Very first thing is we have to think about what does it mean by soft power. Fine. See, already we have learned about the hard power, soft power, and soft power. Who have started this concept? किसने ये concept start किया है? Obviously, after the Cold World War, the Soviet Union has got separated, disintegrated, and after that, the whole world moved towards, or we can say, the whole world lead towards the unipolarity. Before that, there were two powers, there were two polars, or we can say the whole world control was in two powers' hands or in two countries' hands. One is Soviet Union, second was the America. But what happened afterward? उसके बाद क्या हुआ? ये डिसइंटीग्रेशन के वजह से बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे, जो स्टेट्स थे, कंट्रीज़ थे, वो सोवियत यूनियन से बाहर आ गए. उनको एक खुद का इंडिपेंडेंस नेशन, उनको स्टेटस चाहिए था, तो वो हो गया. और उसके बाद पूरा जो वर्ल्ड था वो एक यूनिपोलर के तरफ मुड़ गया. यूनिपोलर मीन्स द होल पावर इन वन कंट्रीज हैंड. फाइन. So which is that country? It was the America. Fine. So the control was there in the hands of United States of America, and as we know that the new term has got started, that is the unipolarity. Fine. As well as new term has got started, that term is known as New World Order. New World Order means एक नया ऑर्डर अभी फोकस में आने लगा. और वो ऑर्डर किसने इस्टेब्लिश किया? ऑब्वियसली ये जो ऑर्डर था वो अमेरिका ने स्टार्ट किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने. तो अभी सॉफ्ट पावर मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ पावर. वन इज़ हार्ड पावर एंड सेकेंड इज़ सॉफ्ट पावर. सो हार्ड पावर मीन्स वॉट? द मिलिट्री. Whenever there is a war situation, the military attack, the soldiers are there, army is there, navy, and this kind of situation, this kind of system is there. So that system, that whole structure is known as the hard power. So we know that America has a hard power also, as well as soft power. Now what does it mean by soft power? Means whenever there are any we can say war situation, or whenever there are the conflicts between two states or two countries, that time America is using this soft power. Let me show you this example, or what is exactly
important to write that we are going to see now. Now see here what is expected answer here. I have already underlined this answer. Here, one of the other aspect about American domination was the use of American soft power. Fine. And now soft power means what? Soft power is when you influence the other countries without the use of military force. Okay. And how they are influencing? Influence कैसे करते हैं ये countries? सॉरी अमेरिका दूसरे कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस और प्रभावित कैसे करते हैं? वो उनको इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, उनके सोशल जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, इश्यूज़ है, डिस्प्यूट है, वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, एज वेल एज दे स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द कल्चर ऑल्सो. सो दिस इज़ द वे वेयर अमेरिका स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग अदर कंट्रीज़. ये इस वे से क्या कर रहे थे? अमेरिका दूसरे कंट्रीज़ को प्रभावित कर रहे थे. इसलिए आपको सॉफ्ट पावर का अगर कुछ क्वेश्चन आए तो आपको ये मेंशन करना है. बिफोर दैट यू हैव टू गिव द हिस्ट्री और यू हैव टू गिव the whatever I have given the introduction before asking or before writing the soft power. What I told you that America started interfering in the conflict situation or in the disputes amongst countries. Now here one example you have to put or you have to mention. What is that example? Let me show you. See, Iraq and Kuwait conflict. See, you have to write it down in your own words. So at that time the United States took the initiative and led a multinational force against Iraq. अभी उन्होंने क्या किया? अमेरिका ने इसमें इंटरफियर किया और जो मल्टीनेशनल फोर्स है उसका इस्तेमाल किसके अगेंस्ट किया? इराक के अगेंस्ट किया. और कुवैत को क्या क्या कहा और क्या किया? कुवैत के साथ उनको वहाँ से अलग किया और कुवैत को सपोर्ट किया. तो इसकी वजह से क्या हुआ? ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, फाइन, ये जो कुवैत और इराक के बिटवीन इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एंड हो गया. सी, द वॉर एंडेड विथ कुवैत बिकमिंग फ्री फ्रॉम इराकी कंट्रोल. अभी इराक को क्या चाहिए था? इराक को पूरे कुवैत को कंट्रोल करना था, कुवैत को भी अपने साथ मर्ज करना था. लेकिन ये इंटरफियरेंस के वजह से क्या हुआ? इराक ने कुवैत को मर्ज नहीं किया, तो ये डिस्प्यूट हो गया. इसके वजह से सब लोग क्या करने लगे? जो जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये नया कंसेप्ट मैंने बताया. ये एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा एग्जांपल आप इस सॉफ्ट पावर में लिख सकते हो. ये भी आपको कैसे लिखना है? अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो भी लिखना है. अगर ये कम मार्क्स के लिए आता है तो सिर्फ आपको सॉफ्ट पावर की डेफिनेशन लिखनी है. अभी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसको किसने किसने सपोर्ट किया? द अमेरिकन एक्शन हैड रिसीव्ड ग्लोबल सपोर्ट including Soviet Union, China and other countries. Means what? The countries, they started accepting, they started adopting the what we call it, the domination we can say, or we have all the countries, they have started accepting the interference of America in other countries or in the dispute of other countries, and that is why it is known as soft power. Okay, now we'll move towards the next question. What is the next question? Next question is human rights and humanitarian interventions. Let's see what to write in that answer. अगर ये क्वेश्चन आता है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ह्यूमन राइट्स मीन्स क्या? जो राइट्स हमें दिए गए हैं जीने के लिए. सो फॉर लाइवलीहुड, फॉर लाइव्स, we have got this human rights, as well as the new concept has got introduced here, that is humanitarian interventions. Interventions means what?
इंटरवेंशंस मीन्स इंटरफियरेंस। अभी इंटरफियरेंस किस में होने लगा, जो हम बोलते हैं ना मध्यस्थी होने लगी। अभी क्या होने लगा, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा है, सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेशन हुआ, इवन आफ्टर दैट इन इंडिया एंड पाकिस्तान इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, सेपरेशन हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा ब्लड शेड हुआ, बहुत लोगों की मौत हो गई और बहुत लोगों को मारा भी गया, मैसेक्री हो गई। मैसेक्री मतलब क्या, एक बार मतलब बोलते हैं ना ग्रुप में मारने का सबको, 100,000 2,000 पीपल्स को एक साथ मारना, इसको क्या बोलते हैं, उनकी कत्ल करना, इसको क्या बोलते हैं, मैसेक्री। सो ये अभी होने लगा। अब ये किस में होने लगा, जो जो स्टेट्स और जो नेशंस थे उनको ऐसा लगता था कि नहीं हमें तो अलग होना ही है, लेकिन जिसमें वो पहले से थे तो वो स्टेट्स और वो कंट्रीज़ क्या कहने लगी, नो वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू डिसइंटीग्रेट, टू सेपरेट फ्रॉम आवर कंट्रीज। सो एट दैट टाइम that conflict situation arise, then people they were started agitation, they were started movement to for the separation। अभी ये सब होने लगा। ये कहाँ पे सिचुएशन होने लगी, ये देखो। अभी आपको अब अगर ये आंसर लिखना है तो आपने इसमें क्या लिखना है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट टू राइट इन दैट। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी की है। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स and the creation of new states was not always peaceful। अभी मैंने बोला ना कि डिसइंटीग्रेशन हुआ, नए स्टेट्स, नए इंडिपेंडेंट नेशंस का भी अभी इसमें मर्ज होने लगे, नए इंडिपेंडेंस नेशंस क्रिएट होने लगे। तो ये सारा जो ये था, हम बोल सकते हैं ये जो सारा क्रिएशन था वो पीसफुली नहीं था। कुछ जगह पे वायोलेशन हुआ, कुछ जगह पे वायलेंट मूवमेंट भी हो गए, वायलेंस भी हुआ। ये देखो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, इन यूगोस्लोवाकिया फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड शेड इन बोस्निया हर्जेगोविना बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अभी एथनिक ग्रुप्स मीन्स व्हाट, द रूट पीपल। Root people means the people those who are basically were or belongs to that particular country or state। वो कहाँ से भी वहाँ पे आए नहीं है, मतलब माइग्रेट नहीं हुए हैं, वो बॉर्न एंड बॉटअप वहीं से है। और उनके जो हम बोलते हैं ना एंसेस्टर भी वहीं पे रहते थे। तो इसको हम बोल सकते हैं एथनिक पीपल, वांशिक लोग उसको बोलते हैं, जिसका रूट ही उस एरिया में है और स्टेट्स में है। तो जो एथनिक ग्रुप्स थे उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, उसमें ब्लड शेड हुआ। ब्लड शेड मीन्स एक दूसरे को मारने पे तुले वो लोग, एक दूसरे के मर्डर भी किए। तो ये सिचुएशन थी बोस्निया में। आफ्टर दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो occurred in Chechnya, East Timor and Eritrea। ये जो प्लेसेस है, रीजन्स है, यहाँ पे भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो हमें वो लिखना है इसमें कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कब होता है, जो कंट्रीज़ है वो इंटरफेयर कब करते हैं, जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं। फाइन, तो उस टाइम ये सब इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस करना पड़ता है। तो अभी ये इंटरफेरेंस किसने किया, एज वी हैव सीन दैट अमेरिका एज इमर्ज्ड एज अ सॉफ्ट पावर, अमेरिका इमर्ज्ड एज अ यूनिपोलर country। So obviously the America has interfere in that। So you have to write this, see from here you may which I have underlined from here till the next, it is the response to such situation that people started to be concerned about violation of human rights। फाइन, अभी ये क्या हुआ, वायोलेशन होने लगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, violation of human rights। The United Nations and important global organizations would intervene in countries to prevent conflict from escalating। Okay,
जस्ट लेट्स सी दिस मीनिंग। अभी देखो इसका मीनिंग क्या है। अभी यूनाइटेड नेशंस है एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुए हैं, उन्होंने अभी इंटरवेंस और इंटरफियर करना चालू किया इन द प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है तो उसको कम करने का इन्होंने प्रयास किया। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पीस कीपिंग मूवमेंट वी कैन से, और पीस कीपिंग स्ट्रैटेजी वी कैन से। पीस रखना है हमें सारे कंट्रीज़ में। एक बार हम इफ़ वंस वी try to solve the conflicts in between countries, automatically that action leads towards the silence of or peacekeeping of world। अगर हम छोटे छोटे कंट्रीज़ में जो कुछ डिस्प्यूट है, जो कुछ वॉर टाइप सिचुएशन है, अगर वो हम ख़त्म करें, सॉल्व करें, तो ये हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। हम जो पूरे दुनिया की, विश्व की जो शांति है वो हम हासिल कर सकते हैं। तो ये भी आपको इसमें लिखना है। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस वॉज वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ UN पीस कीपिंग। UN पीस कीपिंग मतलब यूनाइटेड नेशन ने एक नया एक फोर्स बनाया, एक आर्मी मिलिट्री जैसा एक फोर्स बनाया। तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उस सिचुएशन में ये जाकर खुद उनको हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। फाइन, द यूनाइटेड नेशंस डज नॉट हैव इट्स ओन आर्मी। उनकी ये खुद की आर्मी नहीं है। बट इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, member states of United Nations have created a peacekeeping force out of their own military sources। मतलब यूनाइटेड नेशंस की, अमेरिका की खुद की आर्मी अलग है, उनकी खुद की मिलिट्री फोर्स अलग है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस में जो सारे मेंबर्स कंट्री है, उन्होंने खुद ने सब ने एक साथ आकर खुद की एक मिलिट्री बनाई है और मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री रिसोर्स बनाया है जो क्या काम कर, जो जिसका काम क्या है, टू सॉल्व आउट द कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज और वॉर जोन एरियाज। मतलब क्या, जहाँ जहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जहाँ पे ऐसे वॉर सिचुएशन आती है, तो ये मिलिट्री, ये फोर्स वहाँ पे जाती है और उनको हेल्प आउट करती है। So this force is known as UN peacekeepers. Peacekeepers are sent to conflict-prone or war zone based upon UN Security Council recommendations, often when ceasefires are established। तो इनका काम क्या है, जहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है वहाँ पे जाके ये लोग काम करते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। ये भी आपको लिखना है ये सारा, ये जो इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ये देखो आपको ये सारा लिखना है। जहाँ कहाँ से हमने स्टार्ट किया है मैं दिखाती हूँ फिर से। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से स्टार्ट किया, ये भी आपको पूरा लिखना है। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा द यूनाइटेड नेशंस कंटिन्यू टू इंटरवेन इन द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, मैं आपको मार्क करके देती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल रिजोल्यूशन ऑन द डिस्प्यूट। जो कुछ रिजोल्यूशन निकल सकता है पीसफुली डिस्प्यूट का, वो करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। बट नाउ द रैशनल फॉर इंटरवेंशन वॉज नॉट जस्ट टू स्टॉप द ऑन गोइंग वॉर बट टू प्रिवेंट रिकरेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर। मतलब जो ऑन गोइंग वॉर है उसको ही सिर्फ सॉल्व करना ऐसे नहीं, लेकिन जो कुछ रिकरेंस होते हैं, मतलब फिर से राइज होते, फिर से अराइज होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट से, तो उनको उसको भी सॉल्व करने का प्रयास ये करते। तो आपको ये सब लिखना है टिल यू हैव टू राइट टिल द लास्ट पॉइंट इंटरवेंशन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पीस कीपिंग और दिस ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस। Okay, we have finished with this answer. We'll move towards the next answer. See, next important question is multipolarity and regionalism, and last one is about SAARC, Maastricht, BRICS, SCO and G20. These all are the agreements, these all are not a organization. So back to back we'll see both the answers, multipolarity and regionalism first, and then SAARC and rest of the
agreements. So let's move towards multipolarity and regionalism. See, anyhow they can ask you questions. Means short note on multipolarity and regionalism, or explain about multipolarity or this regionalism, or they may ask you why the world has moved towards the multipolarity, why the multipolarity has arisen. So anyhow they can ask you the question, but the answer will be the same. Now what would be the answer? Let's see the answer. ये देखिए, अभी आंसर लिखेंगे, ये देखिए मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म, ये आप थ्रू आउट करके ही रखो. एनी हाउ इफ द बोर्ड विल आस्क क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द आंसर वेरी प्रॉपरली. उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि मल्टीपोलैरिटी मतलब क्या और रीजनलिज्म मीन्स व्हाट. मल्टीपोलैरिटी मीन्स व्हाट? द होल कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड विल बी इन द हैंड्स ऑफ मेनी कंट्रीज. Unipolarity means the whole world's control in one hand, in one country's hand. Bipolarity means the control is in two countries' hand, and multipolarity means more than two countries. They are dominant, or they are controlling the whole world, and that is known as multipolarity. Now, what is more important? See, at the in the earlier stage of unipolarity, so America was a superpower, and not a single country might have challenged the capabilities of America. Fine, the power of America, and that is why America emerged, arise as a superpower. Now, but the situation has got changed. Only hard power is not considered for the superpower. Hard power means military and army power will not be considered. But what is more important, that is amalgamation of both hard power and soft power. How much you can influence other countries and how much strong, capable military you have, that both things are equally important to become a superpower. Fine. But afterward, what had happened? The countries, they started challenging America. They started challenging the dominance of America, the dominant position of America through various aspects. Means economical aspect, traditional aspect, values, then cultural aspects. These are the aspects where the other countries, they started challenging. They started challenging the dominant position of America. For example, here one example has been mentioned, that in what aspects the countries, they started challenging America. China, Russia and India, even Japan, they started challenging in various fields, and that is why the world moved towards the multipolarity from the unipolarity. See, hard power, in the case of hard power, the Russia and China, they have now the strong army and strong military, followed by America. Fine. But not only the military, not only the hard power, the soft power is also has started arising in China and Russia. The China is best in economy. The China has captured the 85% of market. Even followed by China, the Russia has captured the market, and this is the instances are मूविंग आर वर्ल्ड टूवर्ड द मल्टीपोलैरिटी. अभी क्या मैंने क्या कहा यहाँ पे, कि जो अमेरिका जो सुपर पावर थी, उनको चैलेंज होने लगा. किस किस कंट्री ने? रशिया, चाइना, इंडिया, जापान. उन्होंने अभी चैलेंज देने लगे कि हम भी ये कर सकते, हमारे पास भी हार्ड पावर है, हमारे पास भी सॉफ्ट पावर है, हम भी इकोनॉमी में परफेक्ट है, हमारे यहाँ पे भी ट्रेड अच्छा चलता है, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, ये सब हम भी इसमें अभी क्या हुए हैं, कैपेबल हुए. तो आपका जो पावर है, आपका जो कंट्रोल है, वो हम पे नहीं चाहिए. और इसके वजह से क्या चालू हो गया, मल्टीपोलैरिटी स्टार्ट हो गई. ये देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. यूनाइटेड स्टेट्स बिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज्ड. अभी इंस्टेंसेस मीन्स व्हाट, एग्जांपल्स दिए हैं. अभी एग्जांपल्स में क्या क्या है, ये देखो. यूरोपियन यूनियन बनाई गई, तो EU जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने इकोनॉमी कैप्चर किया, उन्होंने नए नए क्रिएशंस किए,
उन्होंने रीजनल इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया, तो उनका एक पावर बढ़ने लगा। बाद में क्या हुआ, ये देखो मिलिट्री रीजन्स, यहाँ पे देखो मिलिट्री रिसर्जेंस ऑफ रशिया। जैसे मैंने बोला ना अभी हार्ड पावर भी उन्होंने वहाँ पे काम करना चालू हो गया, रशिया एज वेल एज चाइना। तो हार्ड पावर में भी उन्होंने बाजी मार ली। देन नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ चाइना, चाइना हैज़ पोज्ड टू फॉर्मिडेबल चैलेंज टू यूनिपोलर वर्ल्ड। चाइना ने यूनिपोलर वर्ल्ड को भी चैलेंज किया। अभी उन्होंने क्या किया, ग्लोबल प्रोमिनेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इतनी की कि उन्होंने मार्केट ही कैप्चर किया। मार्केट कब से कैप्चर किया उन्होंने, मिड 1970s से। जैसे इंडिया ने लिबरल मार्केट और लिबरल इकोनॉमी अडॉप्ट की, तब से चाइना ने इंडिया में बहुत सारा मार्केट कैप्चर किया। जो हमारे लोकल मार्केट्स है, जो हमारे लोकल सेलर्स है, उनके अगर हम कह सकते कंपटीशन में चाइना का मटेरियल है वो सस्ता भी है, वो ठीक है ज़्यादा टिकता नहीं लेकिन सस्ता है। इंडिया की जो अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो पॉवर्टी लेवल भी ज़्यादा है, बिलो पॉवर्टी लेवल भी लोग ज़्यादा है। तो चाइना ऐसा मटेरियल बनाता है जो बिलो पॉवर्टी लेवल के लोगों को भी परचेस करने के लिए वो भी कैपेबल है। तो इतने कम कॉस्ट में उन्होंने मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे कमोडिटीज़ अवेलेबल किए हैं कि इसके वजह से उन्होंने मार्केट का इकोनॉमी कैप्चर किया। तो अभी ये भी सुपर पावर बनना स्टार्ट हो गए। उसके बाद देखो हमारा एशिया एक नया बेल्ट बना। ये देखो एशिया थ्रू द प्रेजेंस ऑफ चाइना, देन रशिया फॉलोड बाय इंडिया। ये जो 3 कंट्रीज़ है, रशिया, चाइना एंड चाइना, एशिया, द राइज ऑफ एशिया थ्रू द प्रेजेंस ऑफ चाइना, जापान एंड इंडिया। अभी ये 3 जो कंट्रीज, हम भी बोलते कि इंडिया महासत्ता बनने वाला है, इंडिया भी सुपर पावर बनने वाली है, तो ये इसमें आपको लिखना है। बाद में रशिया का एग्जाम्पल लिखना है। आपको कहाँ तक लिखना है ये मैं बताती हूँ। रशिया हैज़ मेड, ये देखो लास्ट पैराग्राफ, रशिया हैज़ मेड सस्टेनेबल प्रोग्रेस इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। अभी उन्होंने दूसरे एरिया में उनका खुद का प्रोग्रेस स्टार्ट किया, तो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन पे उन्होंने फोकस किया। देन रशिया हैज़ इमर्ज द एनर्जी सुपर पावर। रशिया हैज़ इमर्ज एज एन एनर्जी सुपर पावर। एनर्जी मतलब क्या, ऑयल एनर्जी है, गैस एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसमें उन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने ये मिलिट्री असर्टिवनेस इन रिसेंट टाइम्स, उनका मिलिट्री भी अभी बहुत स्ट्रांग है, ये सारा लिखना है। तो इसकी वजह से मल्टीपोलैरिटी के तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो दैट यू हैव टू मेंशन। चाइना ने ये नया सिस्टम स्टार्ट किया, 1 बेल्ट एंड 1 रोड। ये देखो यहाँ पे ये जो येलो बॉक्स है इसमें आपको पता दिखाई देगा, 1 बेल्ट 1 रोड एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पॉलिसी ऑफ चाइना। ये नए पॉलिसी की वजह से उन्होंने क्या किया, एक खुद ही मार्केट में बाजी मार ली। तो आपको ये आंसर कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है। आप आपके वर्ड्स में भी ये आंसर लिख सकते हो। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट वेरियस एग्रीमेंट्स। ओके, सो एग्रीमेंट्स क्या क्या है। सार्क एग्रीमेंट है, ये देखो सार्क, देन बिम्स्टेक, ब्रिक्स, SCO एंड G20। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट दीज ऑल आर द एग्रीमेंट्स। ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये एग्रीमेंट्स है। अब ये जो कुछ कंट्रीज़ एक साथ आके, सार्क मीन्स व्हाट, SAARC means there were 7 members of countries, namely India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, and in the 2007 the Afghanistan was also added. Fine, it was the 8th member. Then meanwhile China, USA, EU means European Union, along with 9 other nations have been conferred with the observer states. ये भी उसमें उन्होंने मेंबर होना एक विश कर दी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, द मेन एम ऑफ सार्क वॉज एस्टेब्लिश अ डायलॉग ऑफ साउथ एशिया।
अभी इनका एक एम था, ये क्यों इतने सारे मेंबर्स कंट्री एक साथ आ गए, उन्होंने क्या किया, उनका एक ही एम था कि जो कुछ साउथ एशिया में जो कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते, जो कुछ डायलॉग्स होते और जो कुछ डिस्प्यूट अगर क्रिएट होते, तो उसमें क्या करना है, इन्होंने एक सारे मेंबर्स की मीटिंग लेके ये सारा जो मसला है वो सॉल्व करना है। इसलिए ये नया एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन, ये इस्टेब्लिश हुआ। देन उसको हम बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर प्रीफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हम बोलते हैं SAPTA, सैप्टा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इस ये एग्जिस्ट हुआ, ये 2006 में सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज एक्टिवेटेड थ्रू साउथ एशियन एसोसिएशन फ्री ट्रेड एरिया। मतलब इनका क्या काम है, बाद में उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि जो ट्रेडिंग है उसमें भी उन्होंने फोकस किया। तो ये सारा ये आप मेंशन कर दो, साउथ एशियन एसोसिएशन। ये जो साउथ एशियन मतलब एशिया में जो सदर्न पार्ट में जो कुछ कंट्रीज़ है वो सब एक साथ आ गए और उन्होंने एक साथ काम करने का एग्रीमेंट किया। बाद में है बिम्स्टेक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इज, ये इसका ये है फुल फॉर्म है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1997, comprises of 7 members. ओके, अभी ये 7 मेंबर्स कहाँ पे है, सी अमंग देम 5 आर फ्रॉम साउथ एशिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो इन सब ने मेंबर कंट्री एक साथ आ गए। बाद में म्यांमार और थाईलैंड भी उसमें आ गया और उन्होंने एक खुद की बिम्स्टेक करके एक एक्ट पास किया और एक एग्रीमेंट पास किया। उसमें क्या है, उनका मेन इशू क्या है, क्या एम है, टू फैसिलिटेट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उनको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, बढ़ाना है, एंड प्रमोट कोलैबोरेशन ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और जो कुछ कंट्रीज़ है जिसका कॉमन इंटरेस्ट है उसमें उनको क्या करना है, एक डेवलपमेंट करनी है। नेक्स्ट इज़ द सेम थिंग, ब्रिक्स है, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ आप देखो, उसका ये देखो, आपको इसमें क्या लिखना है, द मेंबर कंट्रीज़ एंड व्हाट इज़ द एम, फाइन, दैट्स इट, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। अभी ब्रिक्स का एम क्या है, ये डेवलपिंग, ये सारे ब्रिक्स में कौन है, सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ब्राज़ील है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है। ये सब एक साथ आए और उन्होंने किसके लिए काम किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। द ब्रिक्स मेंबर्स आर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज़ और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़। अभी रशिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, चाइना में हुआ है, इंडिया में हुए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज करना। और उन्होंने क्या किया, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पे ध्यान दिया एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल और ग्लोबल अफेयर्स, ये आपको लिखना है। बाद में SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन लीडर है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ये कब हुआ, 2001 में। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइन लेटर ऑन, मीन्स 2016 में जॉइन हुए। इन द पास्ट फ्यू years SCO has focus on counter terrorism। ये देखो फोकस क्या है SCO का, काउंटर टेररिज्म, जो कुछ टेररिज्म हो रहा है उसको काउंटर करना है, मतलब ओवरकम करना है, वो सॉल्व करना है और क्या करना है, पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए ये काम करता है। तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, ये अभी भी मसला चालू है, इशू अभी भी है। तो उसमें डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो करने का काम कौन करता है, SCO, मतलब बाकी के सारे कंट्रीज़ इसमें पॉलिटिकल डायलॉग कर सकते हैं। G20 अगेन द सेम, 19 कंट्रीज हैज़ बिन इंक्लूडेड इन दैट। यूरोपियन यूनियन के भी कंट्रीज़ है। ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ, ये आपको लिखना है। बाद में सिंस 2008 G20 समिट्स आर अटेंडेड बाय हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स अलॉन्ग विद देयर फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं उनके साथ ही
जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो भी, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो G20 का कामकाज है और मीटिंग है वो अटेंड करते हैं। अभी देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये सब ये पार्ट है G20 के। उनका एम क्या है? डिस्कशन बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अंडरलाइन दिस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है उन्होंने डेवलपमेंट एंड टू ब्रिज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? इकोनॉमिक डायलॉग क्रिएट करते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग क्रिएट करते हैं। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनको डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए ये G20 काम करता है। So students, I hope you have got what to write in the answers. Very first is you have to think about the question first. And what would be the answer? What all are essential to write in that? You have to think about it. Fine. The each and every question answer is been mentioned in this textbook only. Only the thing is you have to focus on the question. Second thing, you have to focus on the answer also. What would be the answer? Fine. So I hope you have understood all the points. If you have any doubt, you can comment me in the comment box. So today we have discussed all the important points, important questions which would be asked in the examination point of view, or which would be asked in the board examination. So chalo, thank you students. If you have any doubt, comment me in the comment box. Bye bye, stay safe, be safe. Bye.